lecture where we stop. So we'll try to discuss the following things: the spontaneous and non-spontaneous process, Carnot engine, entropy, the general consideration, and the physical significance, and different statements of the second law of thermodynamics. So we will try to cover these things. I hope. Okay, so in previous lecture we discussed about the spontaneous and non-spontaneous processes. So we already discussed this, that spontaneous are those processes which occur on their own without the help of any external agencies. Okay, so these are natural processes. They require no external agencies. पढ़ाया था? Okay, चलो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देते हैं ना. So non-spontaneous process will require energy input. The spontaneous process will be unidirectional. Okay, because the spontaneous processes are always irreversible, and the non-spontaneous processes are reversible. So it is a two-ways process, irreversible and irreversible, and it is away from the equilibrium, and it is always at equilibrium. Okay, and the Gibbs free energy in this position case is negative, while the Gibbs free energy in this case is positive. It will occur very rapidly and it will occur very slowly. So we already discussed that the process, the spontaneous process always gives us less amount of product. It means the yield will be minimum, while in this situation the yield will be maximum. And these are some examples. For example, water run downhill, heat flow, expansion of gases, flow of electric current. Similarly, the non-spontaneous processes are pumping of water uphill, transfer of heat from cold interior to the refrigerator to hot room, and many other processes. You can use many examples. You can. Okay. This is a question. Maybe you can answer this question. In case of non-spontaneous process, the reactions favor is. We already discussed it. What is the answer? In case of non-spontaneous process, the reaction favor is forward, reverse, both forward and reverse. Forward, forward, what? We already talk about that spontaneous process or reversible process. So what does this mean? Both in the forward and in the reverse direction. Okay, because if it is take place in the forward direction or in the reverse direction, that will be spontaneous process, which we can say irreversible process. But both forward and reverse reaction are a reversible process, and that is the non-spontaneous processes. Okay. Now the prediction of the spontaneity and the direction of the process. How we can predict the spontaneity and the direction of the process. So this is one of the important engine, which is called Carnot engine. Maybe you heard about this. Okay. So this was Carnot was an engineer, and he was working in the construction of the combustion engine heat engines. Okay, steam engine we can say. So this is one of the ideal engine which was constructed by Carnot, and we will discuss this. आवाज नहीं आ रही? आवाज साफ नहीं है क्या? Okay, maybe I will make it louder. Cut. आ रही है? Okay, clear है.
So, yes. So we will discuss this Carnot engine. Okay. So Carnot engine is the engine, an ideal engine, which was constructed, which was theoretized by Carnot. That is not practically present. So Carnot engine is not practically present. Although some kind of micro Carnot engine is constructed by some scientists, but still we cannot we cannot construct a Carnot engine practically. Okay, so we will discuss this engine. So these are the four different stages. Okay, so these I can say the blue lines, they are showing the isothermal expansion. This line. Okay, so this is the plot between the pressure and the volume. So the process between A and B is isothermal expansion. Okay, and what is mean by isothermal? What is mean by isothermal? Yes, at constant temperature. Okay, so isothermal at constant temperature. Good. So this is the first step. Okay, this is the first step. Isothermal expansion, isothermal reversible expansion. Okay, so now this is the heat reservoir at high temperature, the QH. What is mean by the QH? The heat at high temperature. So this is the heat reservoir which has highest temperature, high temperature, and this is represented by TH. Okay. Now the heat is flowing from this hot reservoir toward the system. Okay. And when it is flowed toward the system, it will work. It will work. And that will expansion. And this is called isothermal reversible expansion. And you know already about reversible expansion. Because in the reversible expansion, there is the removal of the external pressure with some kind of steps. Like you are not just remove the external pressure suddenly, but you are removing this external pressure in steps. We already explained it. Okay. So now if you give heat from high temperature reservoir to the system, then the gas will expand. And you see here that the gas expand between the A and B. So this is the curve, and this is the step one. We will derive an equation for this as well. Okay. So what will happen in isothermal reversible expansion? What will happen? According to the first law of thermodynamics, the internal energy will be, what will be about internal energy? The internal energy will be zero. Okay, okay, Saqib Hussain. Okay, no problem. Okay, so in this situation, like isothermal reversible expansion, there will be work done. Okay, the work will be done by the system. So the internal energy in this situation is zero. So why the internal energy is zero in this situation? Can someone give any reason for that? Why the internal energy in this situation is zero? Del E is equal to zero. Yes, because the temperature is constant. You are correct, Ariba. The temperature is constant. The temperature is constant because the system is isothermal. Okay, so how we can keep the temperature constant? Can anyone give any reason for that? How we can keep the temperature constant in this situation? What do you think? Adiabatic wall? Adiabatic wall? No. In adiabatic process,
If you are giving the adiabatic wall, then there will be no flow of heat. There will be no flow of heat. Okay? But this is not adiabatic process. This is isothermal process. So the temperature is kept constant. So how you can kept a temperature of this system constant? Okay. Okay, you can find some answer for this. Okay. This is the first process. From A to B, there is isothermal expansion, and the delta E will be equal to 0 because you know that the temperature is constant. So we will have a work, and we will show you how the work. So the work will be done. So W will be equal to what? Q will be equal to W, and because the work is done, because the external pressure is constant, so P del V, okay. And when we integrate this between the V1 and V2, this is the V1 and this is the V2, then we will get the equation. You already know that P is equal to nRT, and we will get the equation nRT log of V2 by V1. You already aware of it. Okay. So this is the work done. So the W1. Now this is the W1. Okay. So this is the W1. Here we will get W1. So this is the W1. Because the del E is 0, so according to the equation, del E is equal to Q, okay? Del E is equal to Q minus W. And you know about the minus in the positive sign. You know already about this. So because the dE is equal to 0, so Q will be equal to W. Q will be equal to W. And we will get the nRT log of V2 by V1, because we already know that if we integrate this between the V1 volume and V2 volume, then we will get this kind of equation. We will show it. So this is the first one. Okay. Now in the second step, what is happening? So here we are going through adiabatic expansion. Adiabatic expansion. And what is meant by adiabatic process? What do you mean by adiabatic process? No flow of heat, yes. So adiabatic process is the process in which there is no flow of heat. So what we will do, इसमें हम क्या करेंगे? What we will do? What we will do? We will insulate the system. We will insulate the system. Okay. So this whole system is insulated. This whole system is insulated. Okay. So there is no flow of heat. Okay. So if there is no flow of heat, then here what will happen? There will be change in the internal energy, because we already given heat to the system. Okay, you know that. We already given heat to the system, so there will be expansion, and this work will be on the basis of internal energy. So there will be change in internal energy, and we can relate the internal energy with the heat capacity. And you know that. You know that. What is the relation between the internal energy and the heat capacity? Okay. So in this situation, the Q is 0, and the del E will be equal to NCV del T. NCV del T. And you know already that what is mean by CV. You know that? CV. We already discussed this. CV. So CV already, because the Q is 0 in this situation. Okay. The Q will be 0. Okay. The Q will be 0. So del E will be equal to, we will get the del E dt. सर हीट तो डेफिनेटली फ्लो करती है, तो हम एडियाबैटिक सिस्टम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? कहाँ पे फ्लो करता है हीट? भाई हीट कहाँ पे फ्लो करता है? हाँ भाई, वी आर keeping the system insulated.
हमने तो सिस्टम को इंसुलेट किया हुआ है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान तो कोई फ्लो नहीं हो रहा है हीट का। इस सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान तो कोई फ्लो नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? एडियाबेटिक का मतलब ही यही है कि भाई सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान कोई हीट फ्लो नहीं होगा। जब हीट फ्लो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो आपके पास ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है, ये आपके पास एक्चुअली एक्सपेंशन और वर्क करता है। तो द वर्क इज डन ऑन द basis of internal energy, change in internal energy, because we already know that we have already given some heat to the system. Okay. हाँ, सिस्टम की एनर्जी तो ग्रेजुअली चेंज, यस, वो तो चेंज होगी, यस, बट इन दिस सिचुएशन देयर विल बी नो चेंज. We are just insulate the system, so there will be no flow of heat from outside inside. Internally, you can say that internally we can say there will be internal change in the thermal equilibrium. You can say there will be internal change in the thermal equilibrium, but no external change. Okay, this is called internal thermal equilibrium. Now in this situation, if change होती है तो adiabatic case है. Change is internal, not external. There is no external change. Okay, the change is internal. So in this situation, we will get the del E, which is equal to NCV, because you know that CV is equal to what? CV is equal to del E over del T. Del E over del T. CV किसके बराबर होता है? del E over del T के बराबर होता है ना? आपको समझ आ रहा है? तो del E किसके बराबर होता है? CV del T, and we will get this equation as well. So ये एक दूसरा इक्वेशन हम इससे हासिल कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? अब ये आपके पास एक और प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये क्या चीज है? आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और आइसोथर्मल है इसलिए आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी, तो वर्क होगा, बट इन दिस सिचुएशन द वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम, नॉट बाय द सिस्टम। यहां पे आपके पास क्या होता है? वर्क सिस्टम करता है, यहां पे वर्क सिस्टम पे होता है, ठीक है ना? और हमने क्या किया हुआ है? इसको कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ? रिजर्वायर है आपके पास, यहां पे कौन सा है? एट लो टेम्परेचर। यहां पे आपके पास रिजर्वायर कौन सा था? एट हाई टेम्परेचर। तो यहां पे क्या होगा? जब आप एक सिस्टम को क्या करते हो? एक कंप्रेस करते हो, तो कंप्रेशन की एक हीट होती है, एंड दैट हीट विल फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टुवर्ड द कोल्ड रिजर्वायर। ये कहां पे पहुंचेगा? कोल्ड रिजर्वायर की तरफ जाएगा, एंड यू विल गेट अनदर वर्क दैट इज इक्वल टू W2। तो ये आपके पास एक W2 तो यहां पे आ गया ना, ये आपके पास है W3, इसे W3। तो ये W1 जो आपके पास था वो nRT log of V2/V1 था। ये आपके पास जो W क्या है 2 है, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड विच इज इक्वल टू NCV del T। और ये तीसरा जो आपके पास W3 है, दैट इज आल्सो इक्वल टू द nRT log of, तो यहां पे आपके पास बन जाएगा V4 to V3। तो ये V1 V2 V3 और ये क्या बन जाएगा? V4 to V3 फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, ठीक है ना? तो ये आपके पास एक और वर्क होगा, और ये वाला सिस्टम जो आपका है ये इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना? लास्ट वन इसमें आपके पास आता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब यहां पे एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, ठीक है ना? आप प्रेशर को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हो, और आपने सिस्टम को इंसुलेट किया हुआ है, सिस्टम को क्या किया हुआ है? इंसुलेट किया हुआ है, और फर्दर आप क्या करते हो? कंप्रेस करते हो। तो कंप्रेशन के बाद ये क्या होता है कि ये सिस्टम वही पोजीशन पे आ जाता है। इधर देखो, ये सिस्टम इधर ही आ जाता है, ये सिस्टम इधर आता है, ठीक है ना? ये सिस्टम इधर आ जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस पोजीशन पे आ जाता है ये सिस्टम, और ये प्रोसेस इसी तरह क्या करते हैं? साइकिल में चला जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। इसको क्या कहते हैं? कार्नोट साइकिल। तो इनिशियल स्टेप में आपके पास क्या था कि आपके पास हार्ट रिजर्वायर से हीट फ्लो होता था किसको? सिस्टम को। सिस्टम वर्क करता था क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो थी, और आपके पास जो वर्क था वो nRT log of V2/V1 के बराबर था। दूसरे में आपने सिस्टम को इंसुलेट किया था, तो इंटरनल थर्मल इक्विलिब्रियम होता था, और जिसमें आपके पास वर्क जो था वो del E के बराबर था, और जो बराबर है NCV
डेल टी के बराबर है। और तीसरे में फिर आपने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, तो हीट ऑफ कंप्रेशन, और वो हीट जो था वो लो रिजर्वायर की तरफ चला गया सिस्टम से, और आपके पास जो वर्क था वो बराबर था, वहां पे वर्क आपके पास सिस्टम के ऊपर होता है। और चौथे में और लास्ट में आपके पास क्या आता है कि फिर आप सिस्टम को इंसुलेट करते हो और उसको कंप्रेस करते हो। तो जब आप उसको कंप्रेस करते हो तो उसमें हीट पैदा हो जाता है और द सिस्टम आखिर इब्तिदाई स्टेज पे चला जाता है, यानी हार्ट टेम्परेचर पे चला जाता है, हार्ट रिजर्वायर के टेम्परेचर पे चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह चलता रहता है, और ये आपके पास जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। और ये जो एरिया है आपके पास, दिस होल एरिया, दिस एरिया इज द टोटल वर्क। और ये आपके पास जो टोटल एरिया है, ये वाला पूरा एरिया जो आपके पास है, वो टोटल वर्क के बराबर है। तो दिस वर्क विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि W2 और W4 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और आपके पास टोटल वर्क जो बराबर होता है वो W1 और W3 के बराबर होता है। तो ये इंशाल्लाह हम आगे अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्टेप 1 था। तो स्टेप 1 पे हमने क्या किया, हीट दिया सिस्टम को, उसने वर्क किया, बिकॉज डेल ई विल बी 0। यहाँ पे आपके पास डेल ई क्या था, डेल ई आपके पास क्या है, 0। ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन डेल ई यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है ना। फिर आपके पास सिस्टम जो है वो V1 से जाता है V2 की तरफ, और एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो चेंज इन वॉल्यूम आपके पास फिर हमारे पास ये आता है, और आपने फिर इसकी जगह आपने जो क्या है nRT/V लगाया है। टी की जगह क्या मौजूद है इधर, nRT/V है, तो V चूंकि वेरिएबल है तो dV/V, और आपके पास इक्वेशन में आता है nRTH log ऑफ V2/V1। तो ये एक पहला इक्वेशन था जो आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये पहला इक्वेशन आपके पास ये वाला आ गया है, क्लियर है आपको। इन विच स्टेप of this cycle maximum work done, the maximum work done will be the combination of all the four steps. Okay, so the work will be not done by any individual step, the whole cycle will be repeated again and again, and you will get the total work of the system. Okay, the next step is step 2. Okay, now in this situation, as you already know that in this situation we have the work is equal to the change in internal energy, because the Q is 0 now. यहाँ पे Q क्या है, 0 है। okay, Q क्या है, 0 है। तो W2 will be equal to minus del E2, and that will be equal to like this equation. तो ये आपके पास एक इक्वेशन ये आ जाता है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको समझा दिया कि भाई NCV del T कहाँ से आया। तो NCV del T कहाँ से आया था, क्योंकि आपके पास जो CV होता है वो किसके बराबर होता है, CV किसके बराबर है, वो del E ओवर del T। ओके, del E ओवर del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आता है, दिस इज द NCV del L माइनस, लोगों ने पढ़ा होगा कि ये डेल, कैपिटल डेल जो आपके पास आता है डेल T के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक और इक्वेशन आपके पास आता है। तो ये भी वही इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आया है, लेकिन आपने वहां पे Q की अमाउंट को क्या कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाता है, ठीक है। हर स्टेप में वर्क हो रहा है। मैंने ये पूछना चाह रहा हूं कि मेन से वर्क किस स्टेप में होगा, कि इनमें से मोर वर्क किस स्टेप में होगा। यार मोर वर्क जो है, इसका मैं कहता हूं ना कि मोर आपका जो टोटल वर्क, इसमें ये नहीं है, दोनों में वर्क सेम होता है। मिसाल के तौर पे आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में और आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, दोनों में सेम वर्क होता है, ठीक है ना। आपके पास जो क्या नाम है उसका, एडियाबेटिक एडियाबेटिक जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है और एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन है, वहां पे जो वर्क होता है एक दूसरे के वर्क को क्या करता है, कैंसिल कर देता है, ठीक है ना। और जो इसलिए आपके पास जो टोटल वर्क होता है वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन से ही आता है। इसलिए टोटल जो W होगा वो W1 प्लस W3 के बराबर होगा, इसलिए कि W2 और W4 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते,
ठीक है। तो ये आपके पास दूसरा वो है, क्या नाम है, दूसरा स्टेप है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 पे वही चीज है, पहले मैंने बस समझाया था आपको, लेकिन यहाँ पे मैंने सारी यहाँ पे गलती से मैंने लिखा है, ये दिस इज नॉट V1, दिस इज V3, ओके, सॉरी फॉर दैट, दिस इज V3 and this is V4, okay, and the same thing for here, V3, V4, and the same thing for here, बन जाएगा V3, ठीक है ना। तो ये पहले से हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पे गलती से इस तरह हो गया इसके साथ। तो ये वही स्टेप है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपके पास वो एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन है, तो जहां पे आपके पास W4 बराबर होगा -E4 का, और द सेम थिंग, बट हियर वी विल गेट लाइक दिस, like this system, NCVTL minus TH, because you know that the work, the value will be cancel the effect of each other, and you will get this equation. So this equation and the equation in the step number 2 will cancel the effect of each other, and then the W will be equal to W1 plus W3. So these two will be cancelled. W1 और W3 आ जाएगा आपके पास, W2 और W4 एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, और आपके पास जो टोटल हीट है वो द हीट एट हायर रिजर्वायर जो आपके पास था, और हीट जो आपके पास लो रिजर्वायर का है। तो टोटल हीट आपके पास इन दो सिस्टम्स के अंदर आ जाएगा, जो आपको पहले भी पता है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में और आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन के अंदर। तो ये आपके पास वो हीट आ जाता है। ओके, अब आपके पास ये है W किसके बराबर होगा, W1 प्लस W3 के बराबर है, बिकॉज द W2 एंड W4 कैंसल आउट, उनके दोनों के इफेक्ट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, एक पॉजिटिव में आता है दूसरा नेगेटिव में आता है, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो आपके पास सिर्फ W बराबर है W1 प्लस W3 का। और अब आपके पास चूंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक डेल E इज इक्वल टू Q माइनस W है, तो आपके पास ये W किसके बराबर है, Q किसके बराबर है, यू नो दैट इज इक्वल टू the QH plus QL minus W, and because you know that the del E is equal to 0 in this situation, so we will get the W will be equal to QH plus QL, and that will be equal to Q. So the total heat, the total work will be equal to the Q at high reservoir plus the Q at low reservoir, ठीक है ना। तो ये आपके पास वो है क्या नाम है, टोटल वर्क है आपके पास। क्लियर है आपको, ये चीज क्लियर है? Okay, now the efficiency of the engine. What is the efficiency of the engine? Okay. I will give some examples, maybe in the last, I will give you some examples, so you have to calculate it. Okay, but here I want to talk about the efficiency of the engine. So you know that what is the efficiency of the engine? The ratio of the work done by the engine to the heat supplied to the engine at high temperature. Okay, यानी आपने एक सिस्टम को हीट जितना दिया है, उसने कितना वर्क किया हुआ है, इन दोनों का जो रेशो आपके पास है उसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। मतलब आप सिस्टम को हीट देते हैं ना, और सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। अगर आप सिस्टम को जितना हीट देते हैं इतना ही वर्क वो करता है, तो आपके पास जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो 100%, बट इट इज नॉट practically possible. It is not practically possible that the input is totally equal to the output. जितना आप इनपुट देते हैं उतना आउटपुट आ जाए, ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। There is no engine such like in which the input is equal to the out. Okay, so the W divided by QH, the W divided by the Q. This is not the this is the QH, and you know that the W is QH plus QL, and which is equal to QH. And sometimes you can write this as 1 plus QL by QH. You can write like this. Okay, so this equation can be written like this, and we can also write this equation because we know that the QH plus QL
or we can say that W, this is equal to the NR TH minus TL log of V2 by V1. Okay, so this is an equation for W, the combination of the QH and QL, which is equal to E is equal to NRT okay, NRT, but the T is TH minus TL, okay, log of V2 by V1, okay, and you will just divide this total equation by the QH. So what is QH? NR TH, QH तो आपको पता है क्या है, तो log of V2 by V1. So this is the equation, and you will cancel the effect log of V2 और V2 ये cancel हो जाएंगे, R और NR जो है ये भी cancel हो जाएगा. तो आपके पास फाइनल जो एफिशिएंसी की इक्वेशन आएगी वो होगी E is equal to TH minus TL divided by TH. Okay, because NR जो है वो कैंसिल होगा NR के साथ, log of V2 ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा वो होगा E is equal to TH minus TL over TH, और अगर TH के साथ कैंसिल हो जाए तो ये बन जाएगा 1 minus TL over TH. 1 minus TL over TH. TL क्या चीज है? TL जो है वो आपके पास जो है द टेम्परेचर ऑफ द लो रिजर्वायर, और TH क्या है? द टेम्परेचर ऑफ द हाई रिजर्वायर. तो हाई टेम्परेचर पे आपके पास जो रिजर्वायर है वो आपके पास TH है, और जो लो टेम्परेचर पे आपके पास रिजर्वायर है वो आपके पास क्या है? लो टेम्परेचर. सर वी कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ T1. यस यू कैन राइट इट. T1 आपके पास, ये आप T1 भी लिख सकते हैं, ये आप जो है और कोई भी टर्म उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जस्ट आप उसको आपको समझना चाहिए. तो आपके पास जो लास्ट इक्वेशन इसके आ जाएगा वो क्या? TL बाई TH, ये आपके पास इक्वेशन है. और इस इक्वेशन के बुनियाद पे आप बहुत से क्वेश्चन जो है, बहुत से चीजों को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है, आप जरा इसको नोट करते जाए. कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम इंजन. कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम इंजन. मैं आपको यहाँ पे मैसेज में लिखवा देता हूँ. कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम इंजन, ओके, वर्किंग बिटवीन, चलो मैं इधर ही लिखवा देता हूँ, ये छोड़, टेक्स्ट में लिखवा देता हूँ तो ये बड़ा ओके. कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम इंजन working between a hot reservoir at 120 degree centigrade. इसे तो लिखना मुश्किल है सिंबल. and a cold reservoir at 40 degree centigrade. Okay, it is very easy, you can calculate. तो आपके पास एक वो है, क्या नाम है, ओ सॉरी यार, नजर आ रहा है कि नहीं? ये इस सिस्टम में बड़ा प्रॉब्लम है यार. ओके, माइनस आता है, क्या माइनस आता है? एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी? जस्ट कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू क्या नाम है, टेम्परेचर इनटू केल्विन. यस, 120 प्लस 273 एंड 40 प्लस 273, और बाकी आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला मौजूद है.
So hot reservoir minus cold temperature of the hot reservoir minus cold reservoir divided by the temperature of the hot reservoir. So what is the answer? Just give me the answer. Okay, just give me the answer, and maybe I will give you some other problem as well. So what is the possible? 21%. Good, good. So this is 21%. You are right. So we can. So this is all about Carnot engine. Okay. Let's see some problems if I have. Okay, Carnot engine is efficiency of efficiency to be increased by what must be the temperature of the source to increase. Okay. Wow. This is a question. Maybe I don't know. It will be possible to solve you if you can solve. Okay. Just this question. A Carnot engine has an efficiency of 30%. Its efficiency is to be increased to 50%. Okay. By what means must be the temperature of the source be increased if the sink is at 300 Kelvin? Sink is at 300 Kelvin. H और आपके पास एफिशिएंसी 0.30 है, 0.30 है ना, 30%. तो यहां से आप मालूम कर सकते हैं. तो आपके पास T1 क्या आ जाएगा? T 1 माइनस TL बाई TH. ये फार्मूला है ना, फार्मूला तो आपको याद है ना. 1 माइनस, देखो फार्मूला आपके पास है E इज इक्वल टू 0.4 नहीं होगा? नहीं भाई, आपके पास जो मतलब है ना, Carnot engine efficiency of 30%. Its efficiency is to be increased to 50%. By what must be the temperature of the source be increased if the sink is at 300? तो कितना इंक्रीज होगा? 171.4 केल्विन. तो आपके पास जो टेम्परेचर ऑफ द सिंक होगा वो 171.4 केल्विन होगा. ओके, 172 इज आल्सो ओके. सो these kind of questions you can solve. ठीक है. ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं. और इसी तरह के आपके प्रॉब्लम भी आ सकते हैं कि आपको एफिशिएंसी मालूम करनी होगी या वर्क, या इस तरह आपको हीट एट हॉट रिजर्वायर एज वेल एज ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर. तो ये क्वेश्चन है. अब ये एक और क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, मैंने इसके अंदर पहले से दिया हुआ है. तो ये क्या है? इन ए कॉर्नर साइकिल द वर्किंग मीडियम रिसीव्स हीट एट अ टेम्परेचर. इन ए कार्नट साइकिल, कार्नट साइकिल में जो वर्किंग मीडियम है वो हीट रिसीव करता है कौन से टेम्परेचर? लो पे, हाई पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, या नन ऑफ द अबव? मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंजन. ओके, वी कैन नॉट से
we cannot say, but it should be not more than the efficiency of the Carnot engine. और Carnot ने कहा भी था कि भाई there is no engine which can work more efficient than Carnot engine. तो Carnot engine से ज्यादा efficient कोई engine दुनिया में नहीं है. But that is ideally, not practically. तो maximum efficiency आपके पास है, it cannot exceed the Carnot. हाँ, yes. वो 100% तो उस वक्त होगा ना आपके पास, वो कीमत जब आपके पास इनपुट और आउटपुट क्या होगा, सेम होगा. जितना आप इनपुट देते हैं सिस्टम को, उतना आप उसको क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं. तो फिर आपके पास क्या होगा, 100% एफिशिएंसी होगी. बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ द हीट इज लॉस्ट. हमारे पास सिस्टम के अंदर हीट जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है. 100% जो हीट यूज नहीं हो सकता. इसका जवाब दे देना ये क्वेश्चन जो है. In a Carnot cycle, the working medium receives heat at a temperature, constant temperature. Is that true? Yes. Maybe initially we write something, some points about this, that Carnot cycle always, when it takes as working medium, receive the heat at high temperature. It is not the constant temperature, because it always start from the high temperature reservoir. Okay, so we always start from the high temperature, and then return back to the high temperature as well in this cycle. So it cannot be constant. It should be high temperature. So this is the answer. Okay, the next question. In a Carnot cycle, the working fluid is. Carnot cycle में आपके पास जो वर्किंग फ्लूइड है, यानी जो आपके पास जो सिस्टम है, वो क्या है? वो रियल गैस है, वो आइडियल गैस है, वो नेचुरल गैस है, वो नन ऑफ द अबव है. Yes, ideal gas. Good. Because it always work on ideal gas. This is not a real gas. It is ideal gas. Okay. Now we will discuss about the entropy. So the next topic is entropy. We will talk about entropy. Okay. So what is entropy, and what is the physical meaning of entropy, and why it is important, and how the thermodynamic talk about entropy. So all these things will be discussed. I hope we will talk about this, but maybe most of you are clear about the Carnot cycle or Carnot engine. If there is any question in your mind, then you can ask. So, sir, please, maximum student ने join किया है? I already save. Yes, I already save. 41 students. I save the attendance of 40. Maybe I save the attendance of 42. Okay, 42 students के मैंने attendance को वो कर दिया है. लेकिन बाकी कितने, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 45 है ना? 44 है ना? तो बाकी स्टूडेंट तो है नहीं. 41 मैंने 41 या 42 स्टूडेंट्स का मैंने करवा दिया है. ठीक है ना? और मैं 2-3-4 अटेंडेंस जो है वो करके फिर मतलब उसमें से करवा देता हूँ. ठीक है? हाँ, ओके, गुड. तो ये आपके पास यहाँ तक आपके पास जो टॉपिक था वो था क्या नाम है, Carnot cycle और Carnot engine. Now we will go toward the entropy. Okay, so just give me the definition of entropy. What do you think about entropy? Randomness, disorderness in the system. Yes, all these things are correct.
state of randomness of a system. Unavailability to convert heat energy into useful work. Good. Quantitative measurement of the system. Quantitative measurement of the system. So all these things are correct. And now we will discuss about this. So there is some brief history of the entropy. So in 1865, Clausius named the concept of entropy, S. What is S? S is entropy. So the differential of a quantity will depend on the configuration of the system. The differential of a quantity will depend upon the configuration of the system. What is meant by configuration of the system? Configuration means that how the system is made, how the system structure is. So this is entropy after the Greek word for the transformation. So what is the thermodynamic definition of the entropy? So thermodynamic quantity representing the unavailability of the system thermal energy for conversion into mechanical work, often interpreted as the degree of the disorder or randomness in the system. Okay, so already you aware of it, that the thermodynamic quantity representing the unavailability of the system thermal energy for conversion into mechanical work. Okay, तो बाद में हम पढ़ लेंगे कि भाई हमारे पास एक होता है ना टोटल एनर्जी होती है ना, और एक होती है कन्वर्टिबल एनर्जी, और एक होती है नॉन कन्वर्टिबल एनर्जी. ठीक है ना. तो आपके पास जो कन्वर्टिबल एनर्जी है, जो आपके पास जिसको आप कहते हैं यूजफुल एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी है जो यूजफुल एनर्जी है? Gibbs, yes. Gibbs free energy is the useful energy, which we can say the convertible energy. And you already aware of that. G is equal to H minus T S. तो इसमें आपके पास जो टोटल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज द H. ये क्या चीज है? एंथैल्पी है. और जो आपके पास इसमें यूजफुल एनर्जी है, यानी दैट इज गिब्स. तो जनरली आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जी H इज इक्वल टू G प्लस TS. ओके, तो आप जनरली इसको इस तरह लिख सकते हैं कि H क्या है? H बराबर किस चीज का है? टोटल एनर्जी. आपके पास किसके बराबर है? G, इसको आप गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, और प्लस द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, इसको हम कहते हैं अनअवेलेबल एनर्जी, दैट इज नॉन कन्वर्टिबल एनर्जी. तो पूरे सिस्टम की एनर्जी आपके पास दो शक्लों में, एक कन्वर्टिबल एनर्जी है जिसको आप कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, और एक नॉन कन्वर्टिबल एनर्जी है कि जिसको आप कहते हैं TS. तो एंट्रोपी क्या चीज है? दैट इज थर्मोडायनामिक क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम थर्मल एनर्जी एंड कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल वर्क. तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम थर्मल एनर्जी, सिस्टम की जो थर्मल एनर्जी है दैट इज अनअवेलेबल, and that is the disorderness or randomness of the system. Okay, are you clear about this? So the thermodynamic definition आपको clear है कि वो quantity जो represent करता है unavailability of the system thermal energy for conversion into mechanical work. ठीक है. दूसरा इसका जो definition है वो statistical mechanics का है, और ये definition किसने दिया था? ये डेफिनेशन किसने दिया था? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो डेफिनेशन है ये किसने दिया था? याद है किसी को? Who gives this definition of statistical mechanics? What is the definition of entropy on the basis of statistical mechanics? And this one was given by Boltzmann. किसने दिया था? Boltzmann ने दिया था. And that is equal to the S is equal to KB log of this. This is KB. What is mean by KB? KB क्या चीज है? Boltzmann constant. KB क्या चीज है? Constant. Yes, Boltzmann constant है जो आपको पता है 1.38 and 10 to the power minus 23. और what is mean by this omega? इस ओमेगा क्या क्या मतलब है? ओमेगा
दिस ओमेगा, इसका क्या मतलब है? ओमेगा सम ऑफ माइक्रोस्टेट्स, यस यस यस, माइक्रोस्टेट्स होता है, एक होता है मैक्रोस्टेट्स, एक होता है माइक्रोस्टेट। दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट्स? माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा। वेरी गुड। माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा। क्या चीज छोटा होता है? माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा। ओके, माइक्रो मैक्रो जो होता है आपके पास, यानी जो आपके पास बल्क में होता है, बल्क, ठीक है ना? तो थर्मोडायनामिक में हम ज्यादातर बल्क के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक में चले जाते हैं तो फिर वहां पे हम माइक्रोस्टेट्स के बारे में, माइक्रोस्टेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो आपके पास मिसाल के तौर पर एक सिस्टम के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो वो जब हम उसको इंडिविजुअली मॉलिक्यूल को कंसिडर कर देते हैं और फिर उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का भी तस्वुर आ जाता है कि भाई मॉलिक्यूल जो है वो उसके अंदर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है ना? जिस तरह आप चांसेस की बात करते हैं ना, कि आप एक क्या कहते हैं उसको, डाइस को वो करते हैं, चांस के अंदर वो टेल पे आता है कि हेड पे आता है, ये सारे बातें आते हैं इसके अंदर माइक्रोस्टेट्स में। और इसको इसलिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में हम इसको पढ़ते हैं माइक्रोस्टेट में। तो एंट्रोपी जो है आपके पास, दिस इज एक्चुअली द KB log of this. So this microstate related with the Boltzmann constant explain the entropy, and this is another definition on the basis of statistical mechanics. Okay. Okay. According to Carnot, W is the difference of QH and QL. कार्नाट कहता है कि W जो है वो QH और QL का डिफरेंस है, ठीक है? यानी QH हमेशा किसके बराबर होता है? QL के बराबर होता है। और क्लासियस एंड केल्विन जो कहता है कि आपके पास जो W मैक्सिमम होगा, दैट विल बी द एफिशिएंसी इनटू QH, एफिशिएंसी इनटू QH। और ये अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि भाई W मैक्सिमम आपके पास बराबर होता है TH minus TL by TH into QH, because you know that efficiency किसके बराबर है? efficiency किसके बराबर होती है? W divided by QH, इसके बराबर है ना? अभी हमने पढ़ा था ना, ये E का मतलब efficiency है, तो E क्या होता है? ये आपके पास क्या होता है? W divided by QH, इसके बराबर है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि W is equal to E into QH, E into QH। और E किसके बराबर है? E आपके पास बराबर है क्या नाम है? TH माइनस TL बाई TH इंटू QH। तो ये इक्वेशन, एक इक्वेशन आता है आपके पास, दिस इक्वेशन, ये आपके पास एक इक्वेशन आता है, ठीक है? और फिर आगे उसने ये गलत है, ये QH है, दिस इज नॉट QL, दिस इज QH। और कहीं भी गलती हो तो उसको हम निकालते जाएं। तो 1 माइनस TL ओवर TH इंटू QH, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू द कार्नोट ये कहता है कि भाई W किसके बराबर है? QH माइनस QL। ये कहता है कि QH QL के बराबर है। तो आप इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास क्या आ जाएगा? QH ओवर TL माइनस QL ओवर TL इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया? इन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग? इन दोनों इक्वेशन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आपके पास एक आता है 1 माइनस TL ओवर TH इंटू QH, और दूसरा आपके पास आता है QH माइनस QL। तो इन दोनों को हमने कंपेयर करना। तो ये आपके पास आता है QH ओवर TL माइनस QL ओवर TL विच इज इक्वल टू 0, ठीक है? और QH ओवर TL इज इक्वल टू QL ओवर TL। QH ओवर TL
मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ? इसको जरा कर लेना, जरा आप लोग जरा कर लेना, उधर कागज पे कर रहे। शाबाश। इन दोनों को कंपेयर करें जरा, इसका क्या आंसर आता है? हो सकता है यहाँ पे कोई गलती हो हमारे पास। इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं? चलो इन दोनों को कंपेयर करें ना। अभी मेरे पास कोई वो नहीं है, यहाँ पे लिख नहीं सकता मैं, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों? वन माइनस टी एल और टी एच इंटू क्यू एच। ओके, कैन यू कंपेयर इट? आर यू हियरिंग मी? I don't know it is coming right, correct or not. Okay, so just compare these two equations. 1 minus TL over TH into QH and QH minus QL. You can compare it. कोई गलती अगर है तो बता दे। QH over TH माइनस QL और TL इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे ख्याल में TH है ना? मेरे पास अभी कोई चीज़ नहीं है कि मैं इसको प्रूव कर लूँ, लेकिन आप खुद इसको प्रूव करें कि भाई इन दोनों को कंपैरिजन कर लो। तो QH ओवर TH आता है, माइनस QL ओवर TL आता है, QH ओवर TH आता है, QL ओवर TL आता है। TL है ना? नहीं, ये पहला वाला क्या है? QH ओवर TH है या QH ओवर TL है? TH है। ओके, सही है। तो फिर ये भी इसी तरह होगा ना, तो TH ये भी होगा इस तरह, ठीक है ना? तो इनको आप कर ले, फिर खुद कंपेयर कर ले, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, ये जो कंपैरिजन है, दिस इंप्लाइज that there is a function of state that is conserved over a complete cycle of the Carnot cycle. And Clausius called this state function as entropy. So entropy is a mathematical output. Okay, and generally, you know that how mathematically we are defining entropy. So what is entropy? This is the Q by T. You know that? What is entropy? Entropy is Q by T. ठीक है ना? तो मैथमेटिकली जो है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एंड दिस इज कम आउट फ्रॉम दिस कार्नोट साइकिल। ये कार्नोट साइकिल से निकाला गया है। एंड यू नो दैट द क्लासियस जो है उसने इसको डिफाइन किया था मैथमेटिकली, एंड दैट इज कम आउट फ्रॉम हियर दैट द टेम्परेचर of a hot reservoir will be always equal to the temperature of the cold reservoir. है ना? The temperature of the hot reservoir will be always equal to the temperature of the cold reservoir, and the difference between the two will be the work done. ठीक है ना? इसमें जितना डिफरेंस आपके पास आता है वो आपके पास क्या चीज है? वर्क डन। E is equal to Q. No, CV is equal to Q. CV is equal to Q. No. I mean CV is equal to CP is equal to yes, you are right. CP is equal to del Q over dt. No, del H over del H over del T, and CV is equal to del E over del T. CV क्या होता है? del E over del T होता है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और CP क्या होता है?
डेल एच ओवर डेल टी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये तो अलग चीज है ना, सीवी तो अलग चीज है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे आपके पास इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो हॉट रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर वो क्या होगा, कोल्ड रिजर्वायर के बराबर होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, द हीट एट ऑफ द हॉट रिजर्वायर माइनस द हीट ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू वर्क। जितना ज्यादा उसके अंदर डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा वर्क होगा। हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के दरमियान जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वर्क होगा। ओके, सो एंट्रोपी क्या चीज है, द मैथमेटिकल आउटपुट ऑफ द कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में का मैथमेटिकल आउटपुट जो आपके पास होगा वो क्या चीज है, एंट्रोपी। एंड क्लासियस देन आस्क व्हाट वुड हैपन if there should be less work produced by the system than that predicted by the Carnot principle. क्लासियस ने फिर एक क्वेश्चन उठाया कि भाई आपके पास अगर कोई सिस्टम लेस वर्क करता है कार्नट प्रिंसिपल या कार्नट साइकिल, कार्नट इंजन के मुकाबले में जो प्रेडिक्ट करता है कार्नट, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो फिर क्या होगा। तो ये आपके पास है W is less than 1 minus TL over TH। ओके, ये एक इक्वेशन बन सकता है यूजिंग द वैल्यू ऑफ W फ्रॉम इक्वेशन 2। आपके पास जो इक्वेशन 2 है, आपके पास जो इक्वेशन क्या है, 2 है, ये वाला इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन, इक्वेशन 2। ठीक है, यहां से उसने पुट किया है इसके अंदर। तो QL की वैल्यू का अगर आप W यूजिंग द वैल्यू ऑफ W फ्रॉम इक्वेशन 2 में अगर आप यूज कर ले तो आपके पास ये इक्वेशन बनता है W इज लेस देन 1 माइनस TL ओवर TH। और ये आपके पास इक्वेशन में ये वैल्यू जो पुट करेंगे W का, तो QH माइनस QL इज इक्वल टू 1 माइनस TL ओवर TH इनटू QL। ठीक है, और QL इज ग्रेटर देन TL ओवर TH इनटू QH। ये यहां से आया, इस इक्वेशन से यहां। ठीक है, ये जो इक्वेशन है आपके पास यहां से ये आया हुआ है, QH माइनस QL इज इक्वल टू 1 माइनस TL ओवर TH इनटू QL। तो यहां से ये वाला आया है कि QL इज ग्रेटर देन TL ओवर TH इनटू QH। तो मोर हीट इज गिवन अप टू द कोल्ड रिजर्वायर देन इन द कार्नट साइकिल। More heat is given up to the cold reservoir than in the Carnot cycle. क्लासियस ने क्वेश्चन उठाया था कि भाई आपके पास अगर सिस्टम कम वर्क करता है बनिस्बत उसके कि जो कार्नट ने प्रिडिक्ट किया है, तो प्रिडिक्टेड कार्नट का जो वर्क है उसके मुकाबले में अगर कोई सिस्टम कम वर्क करता है तो उसका क्या होगा। तो यहां पे ये इक्वेशन हमारे पास आया हुआ है, यहां पे ये इक्वेशन, ये QL क्या चीज है, कोल्ड रिजर्वायर, हीट ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर है। QH क्या चीज है, कोल्ड ऑफ द हीट ऑफ द हॉट रिजर्वायर है। एंड द TL इज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर, TH इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर। इसका क्या मतलब है, सो मोर हीट इज गिवन अप टू द कोल्ड रिजर्वायर देन इन द कार्नट साइकिल। इसका मतलब है कि आपके पास जो नॉर्मल सिस्टम है उसमें जो हीट होगा कोल्ड रिजर्वायर की तरफ ज्यादा जाएगा। If we denote the entropy by this, already I given you this equation, मैं आपको ये इक्वेशन दे चुका हूं, S is equal to Q by T for the two states, then the above inequality can be written as a decrease in the entropy. SH minus SL is less than 0 or SH is less than SL। ये कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको जरा क्लियर कर दे। ठीक है ना, देखो कार्नट ने कहा था सबसे क्या नाम है, क्लासियस ने, कि भाई आपके पास जो आम सिस्टम होता है, ठीक है ना, उसमें वर्क जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द प्रेडिक्टेड वर्क बाय द कार्नट।
तो ये क्यों होता है इस तरह। ओके, तो ये इक्वेशन हमने देखो, ये इक्वेशन आपके पास डब्ल्यू क्यू एच माइनस क्यू एल इज इक्वल टू 1 माइनस टी एल और टी एच इंटू क्यू एल, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले और फिर इसको जब रीअरेंज कर लेंगे आप तो क्यू एल विल बी ऑलवेज लेस ग्रेटर देन टी एल और टी एच इंटू क्यू एच। ठीक है ना। तो यहां तक आपके पास जो है ये इक्वेशन आता है मेरे ख्याल में। ये यहां तक तो क्लियर है ना आपको। तो इसका क्या मतलब है कि कोल्ड रिजर्वायर की तरफ heat is given up to the cold reservoir, more heat is given up to the cold reservoir than in the Carnot cycle। कार्नट साइकिल में जितना हीट जो है आपके पास कोल्ड रिजर्वायर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, जाता है, वो आपके पास यहां पे इससे ज्यादा जाता है। If we denote the entropy of this is this, then the above inequality can be written as decrease in the entropy। तो आपके पास एंट्रोपी में क्या होगा, डिक्रीज आएगा। एंट्रोपी में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। तो एंट्रोपी में डिक्रीज का क्या मतलब होता है, ये बता दें। एंट्रोपी में डिक्रीज का क्या मतलब है, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रहा है। तो हाई टेम्परेचर पे एंट्रोपी ज्यादा होती है या लो टेम्परेचर पे ज्यादा होती है। ओके, ये इस तरह है कि मेरे ख्याल में मीटिंग जो है वो कहते हैं कि क्लोज होने वाला है। तो इंशाल्लाह वी विल कम बैक एट 3:35। ओके, लो पे तो 30 उस पे आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक उसको हम डिस्कस करेंगे। 3:30 पे वापस आना है आपने। 3:35 3:35 पे उसी वक्त के लिए आपको अल्लाह हाफिज, सी यू।